then I will also, after doing the affinity defect, visual acuity, visual field, extraocular movements, and fundoscopy, then I'll summarize my findings. Here we can see that there is the proptosis, a non-axial proptosis of the left eye, and there is chemosis present. Yes, sir. Then, sir, should I proceed to the next question? जी आपने लोकल एग्जामिनेशन किया और क्या करेंगे आप? सर इंस्पेक्शन की मैंने, इंस्पेक्शन के बाद मैंने सर इसमें जो है वो आई की जो है वो प्रोप्टोसिस चेक की, फ्रंट से, साइड से और टॉप से भी देखा सर, कंपेयर किया दोनों आईज को। उसके बाद सर मैंने इसमें जो है वो विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स और फंडोस्कोपी की। इसके अलावा सर मैंने इसमें जो है वो जनरल फेशियल फीचर्स चेक किए, पल्स चेक की, सर कोई नेक स्वेलिंग, सर रेलेवेंट एग्जामिनेशन में सर नेक स्वेलिंग वगैरह अगर है तो वो चेक करूंगा, लिम्फ नोड देखूंगा सर। फिर सर ऑस्कल्टेशन में सर आई विल चेक द ब्रूई इफ एनी प्रेजेंट। और क्या देखेंगे इसमें? आपने एग्जामिनेशन की आई क्या और क्या एग्जामिन करेंगे इसमें? सर इसमें और जी ओके सर okay, so can you tell me about your findings? so my findings is the left-sided non-axial proptosis with chemosis of the left eye. Okay, so what do you think, what is your differential diagnosis? My differential, it could be it could be a neoplastic lesion, it could be a vascular lesion. So how can you say it is a vascular lesion? So because there is chemosis present, and also if on examination I would deduce whether there is any bruit present or not, whether it is visible. This patient may there is proptosis, but there is no bruit. Yes, sir. So what is your exam? What are your differential diagnosis? Then my differential diagnosis would be a neoplastic lesion. So what type of neoplastic lesion? It could be an extracorneal lesion. For example, it could be a meningioma. It could be और क्या हो सकता है? How can we differentiate clinically whether the lesion is corneal or extracorneal? So clinically, sir, usually the corneal lesions, intracorneal lesion produce axial proptosis, whereas the extracorneal lesion will produce a non-axial proptosis in which the globe will be deflected opposite to the side of the lesion, from the lesion. So, looking to this patient, what do you think? I think there is some, the lesion is at the orbital roof, I guess, because it's the best guess, because the eye is being pushed inferiorly. Okay, so what can be there? It could be a meningioma, it could be. So when you are suspecting meningioma, what do you look for? Sir, hyperostosis of the bone nearby, it could be present. ठीक है, और कोई और अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई एक या दो क्वेश्चन कर ले इस मरीज से, क्या पूछेंगे? सर फर्स्ट ऑफ मैं सर इसमें पूछूंगा सर इनकी whether this okay, for example that okay, deformity की duration पूछूंगा सर. क्वेश्चन में आपको what investigation you will advise? Sir, MRI brain with orbits, brain plus contrast, and CT brain, bone window. So how can MRI help you? MRI will help me to localize the lesion, the size of the lesion, the peripheral structures of the lesion, and surgical planning of the lesion. Why you want to go for CT scan? CT scan to see the bony anatomy around the lesion, and the hyperostosis, if any, present around the lesion. Okay. 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 Can you read the CT scan? So this is a plane, and this is a CT axial view and coronal view, a bone window and brain window of patient XYZ, in which we can see that there is the hyperostosis of the bone of the left orbit, orbital roof, as well as the
zygomatic bone, and there is also slight thickening of the frontozygomatic junction. We can also see that there is soft tissue buzz of the left globe on the left side. There is also up to the bone. There is also the soft tissue swelling that is external to the bone. What is your diagnosis now? What is your Sir, it diagnosis could now? most probably a meningioma. What further investigation you will do? Sir, I would like to do an angiogram. I would like to do the visual acuity, visual field for documentation. I would like to do the angiogram and delineate. Why you want to go for angiography in this patient? आपको क्या नजर आ रहा है कि angiography करना चाहते हैं? The angiogram to delineate the feeders. Angiogram के अलावा कोई और investigation करेंगे आप? I'm sorry, sir. MRI नहीं करेंगे? MRI किधर है आपने तो आप स्कैन देख रहे हैं MRI किया नहीं? No, sir. MRI, sir, I mentioned. Yes, sir. I would like to see the MRI. Yes, I would like to see. Okay. So what you will do with this patient? Sir, counseling होगी sir इसमें सबसे पहले. Sir, counseling में the patient. What type of counseling you will do? Sir, I would counsel the patient that the patient needs surgery to correct the deformity and as well as prevent the visual loss. So you will counsel for deformity and visual loss, and as the lesion may extend further in the cranium. This patient की vision ठीक है, फिर क्या करेंगे? So vision ठीक है इसकी तो sir फिर इसमें के I will counsel about the risk of visual loss in the future as well as intracranial extension of the lesion from the orbital root. Will you going to operate the patient then? I will also, yes sir. When you are going to operate on this patient, फिर intracranial extension तो खत्म कर रहे हैं ना सब कुछ operate कर रहे हैं, वो बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है. Yes sir. So what you will do? Sir, in this I will plan surgery. I will optimize the patient. अभी आप काउंसलिंग में क्या और क्या बताएंगे इसको? सर इसमें सर the risk involved, for example, injury to the extraocular muscles, injury to the optic nerve, injury to the it can result in yes sir. और आप कह रहे कि ये आपका डायग्नोसिस क्या बना है आपने? Sir, my diagnosis is sir meningioma. Which type of meningioma? Which one? कौन सा meningioma? Sir, I would like to see the MRI further to see whether there is. MRI नहीं है, the scan is there. कौन सा meningioma है? Sir, yes sir. Sir, इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, how will you go for surgery? Sir, I would plan my approach in which I will do a left orbital, or depending on the cranial extension of the lesion, I would sir वो लग रही है सर ये लेफ्ट साइड पे मुझे सर जब भी मैंने MRI इसमें yes sir. ये जो है इस पेशेंट के जो आपको नजर आ रहा है उसमें इसकी बात हो रही है जी. Sir, in this How will you sorry operate in this patient? sir, in this patient I would approach the patient with left orbitozygomaticotemporal approach. So how you will do that? So how you will do that? Sir, in that I will place the patient in a supine position with the head turned to the contralateral side with the head pin fixation. After that, I will do a two-piece craniotomy of the orbitozygomaticotemporal region, and then I will excise. Okay. So what complications can be there? So the complications can sir, visual loss. There could be the hematoma formation. There could be infection. और कोई इसमें और क्या complication हो सकती है इस पेशेंट में? जो इसमें जिसकी for which worried क्या नई चीज ना हो? Okay. आपने इस मरीज को ऑपरेट किया and in the evening the patient is deteriorated. What you will do?
So first off, I would need to know whether what was the GCS of the patient when the patient was brought from the OR. Secondly, what is the current GCS? If whether the patient has had any fits or not. Whether what is the metabolic profile of the patient. Then I would move the patient to the CT room if the patient has had sudden decrease in GCS after coming from the OR. I will also manage the fits if there were any report of seizures in the patient. ओके तो इट वाज अ शॉर्ट केस, हमने टाइम ज्यादा लिया, लेकिन शॉर्ट केस में टोटल 10 मिनट होते, 5 मिनट्स कैंडिडेट के पास होते हैं और 5 एग्जामिनर के पास होते हैं. तो डॉक्टर रियाज साहब, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस वाइवा? असल बात यह है कि थोड़ा सा जो है ना, आपको मैंने आपको मैंने एक वो भी भेजी है पीपीटी प्रेजेंटेशन जो कैंडिडेट की है, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये प्रोफेसर्स के लिए, आपके लिए है, जिसमें वो जो है ना उसके पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी लिखे हुए हैं. तो आप काइंडली वो पीपीटी प्रेजेंटेशन यूज करें जिसपे जो है वो सिर्फ कैंडिडेट के लिए है. वो तो आपने अभी भेजी ना? जी हाँ जी, उसको लोड कर दें भले. ठीक है ठीक है. एनीहाउ ये इस पे जो वाइवा हो गया, सो एनीहाउ ये इस पे जो वाइवा हो गया, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? सारी चीजें सामने पड़ी थी, हालांकि सारी चीजें सामने पड़ी थी. ऑब्जर्वेशन ये है कि कैंडिडेट को फौरन वेरी करना चाहिए. जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कैंडिडेट ने फौरन जो है ना मेनिंजियोमा बता दिया. उसको ये पता होना चाहिए कि प्रोप्टोसिस के क्या कॉजेस हो सकते हैं. द ऑर्बिटल ट्यूमर्स, रेट्रो ऑर्बिटल ट्यूमर्स and also the sphenoid wing meningioma. Okay, so दूसरा ये है कि उसने पेपिलेडिमा देखा था, प्यूपिल देखा था, या उसने बताया मैं प्यूपिल्स भी ये देखूंगा, फंडस देखूंगा. फंडास्कोपी का बताया था, फंडास्कोपी का बताया था, अपन प्यूपिल डिफेक्ट भी था, लाइट डिफेक्ट. मैं उसको कहूँ मुझे वो अपना ला दे, ये बीच में जो ना वो होल्ड हो जाता है. जैसे इसने फंडास्कोपी की थी, फंडास्कोपी का बताया था उसने, लेकिन बाकी चीजें मेरे ख्याल में नहीं बताई थी. पीपल्स आपने चेक की थी? ये भी खत्म. अच्छा, इसमें शॉर्ट केस में एक तो जो आपको कमांड मिलता है, तो उसके कुछ चीजें जो प्रिंसिपल है, कुछ एक प्रिंसिपल है कि सबसे पहले आप जब अपनी इंट्रोडक्शन करते हैं और आप उससे परमिशन लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऑफ दैट पर्टिकुलर, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कमांड, आपको कमांड मिला कि एग्जामिन दी आईज ऑफ दिस पेशेंट. तो उसमें अपनी शुरू में जो लोकल एडमिशन, जो लोकल एग्जामिनेशन होती है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कमांड. आप आई को पूरा एग्जामिन कर ले, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, जितनी भी सारी चीजें हो कर ले. लेकिन प्रोप्टोसिस के लिए जब आप बैक से ना जाए और आपने ऊपर से नहीं देखा, तो आपने प्रोप्टोसिस का हक पूरा नहीं किया, तो आपको प्रोप्टोसिस नहीं हुआ. यानी उसके लिए यू शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द बैक एंड टॉप. इसके लिए आप जो ना नहीं आई. वन दूसरा, फिर मेजरमेंट. अच्छा, फिर हर शॉर्ट केस का रिलेवेंट एग्जामिनेशन होती है. आपको पता है कि प्रोप्टोसिस है और आपके जहन में मेनिंजियोमा भी, स्फेनॉइड विंग मेनिंजियोमा, तो इसमें टेम्पोरल बोन को फील करना, दैट इज मस्ट. सम टाइम आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्वेलिंग होती है, तो आपको वो देखना है. इवन आप जो है ना वो प्रोडेंटल डेप्थ भी दे सकते हैं. और आपसे जो पूछा कि भाई इससे आप कोई एक या दो क्वेश्चन कर लें, अगर आपके जहन में मेनिंजियोमा था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिट्स का. इसको फिट्स तो नहीं पढ़ा आपने, देखा स्फेनॉइड विंग मेनिंजियोमा वाले, इनको कोई एक का दो का कभी कभार फिट्स पढ़ते हैं और उनकी यहाँ पे टेक्निक में होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सो ये दो चीजें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और तो थायराइड देखना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीजें हैं. फिर इन्वेस्टिगेशन की बात आ गई, तो आपने जब सीटी स्कैन के बाद आप एमआरआई आपके जहन में था नहीं कि भाई एमआरआई भी कोई करने वाली चीजें, हालांकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें किस तरह उसके बगैर आप आगे जा सकते हैं, आप डायरेक्ट एंजियोग्राफी में जा रहे हैं ना. दूसरा, आपने सिर्फ, जिस तरह डॉक्टर रियाज साहब ने बताया, आपने सिर्फ ओनली स्फेनॉइड विंग मेनिंजियोमा, भाई आप ऑर्बिटल लीजन की बड़ी लिस्ट है, आप उनमें से चीज बता दें कि, और दैट्स अकॉर्डिंग टू दिस पेशेंट. तो मैनेजमेंट में विजन, आप जो है ना उसको, जो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है उसमें विजन या सीसिफ लीक, या जब पता है आपको, आपने जब बोन काटा तो देयर इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑर्बिट. तो उसमें आपकी प्रोप्टोसिस या पल्सेशन पेशेंट को ऑर्बिट में फील होती है.
बिटूरिया हो सकता है, काफी सारे प्रॉब्लम, तो ये सबका मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो एनी हाउ ये तो एवरेज था, यानी दूसरी बात लाल, इन्होंने जो है रिलेवेंट एग्जामिनेशन में नोज चेक किया था। इसमें नोज चेक नहीं कहता। तो ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, आजकल काफी कॉमन है फंगस इन्फेक्शन जी। यस सर। अच्छा, ये सेकंड, ये अभी जो आपने मुझे भेजा है अभी तक हुआ नहीं है, चलो हम इस पे चले जाएंगे। ये जो है ना, ये एक दिस इज अबाउट द एनाटॉमी, और इसमें अप्लाइड एनाटॉमी होगी। तो हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट, कौन करेगा इसको? सर डॉक्टर काफी फरहाद। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हु इज गोइंग टू डू इट? फरहाद। सर मैं हूं सर। आप कौन है? सर फरहाद सर। फरहाद साहब जी। सर दिस इज सीपी एंगल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है सीपी एंगल की सर। अच्छा, इसमें जिन जो स्ट्रक्चर है जिसको निशान लगे हैं, आप उनके नाम बताइए, क्या क्या चीजें हैं ये? सर ये जो ए स्ट्रक्चर है दिस इज सिग्मोइड साइनस एंड बी इज 8th cranial nerve entering 8th and 7th cranial nerve complex going in the internal auditory अच्छा, canal. ये क्या है? व्हाट इज दिस वन जिसको ये कर्सर लगा हुआ है, ये क्या है ये? सर ये दिस कर्सर इज आपको नजर आ रही है ना? जी सर नजर आ रहा है सर। हाँ, ये क्या है? सर दिस इज 9th cranial nerve सर। दिस इज 9th, ओके। और ये बताइए कि ये क्या है? ये कौन सा वाला है ये? सर दिस कैन बी सर 12th cranial nerve hypoglossal। हाइपोग्लॉसल। और व्हाट अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है ये? सर दिस सीम्स टू बी सर पाइका। ओके, और ये क्या है ये? सर दिस इज sigmoid sinus सर। साइनस सिग्माइड, ओके। दिस वन? सर 7th 8th cranial nerve complex है जो internal auditory canal में जा रहा है। एंड दिस वन? And sir, this one can be sir 10th nerve vagus या ये dominal। एंड दिस वन? ये क्या है ये? सर ये सर आइका लग रही है सर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके। अच्छा, what is the significance of this vessel in relation with these nerves? सर इसकी सिग्निफिकेंस सर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में होती है when the 5th cranial nerve is leaving the brain stem, तो उसके ऊपर इसकी कंप्रेशन होती है सर। किससे कंप्रेशन होता है, कौन सी वेसल की? सर आइका की होती है सर इस पे सर 5th cranial जी, nerve। ट्राइजेमिनल में सबसे कॉमन कौन सी वेसल होती है? जी सर एक तो सर सुपीरियर सेरिबेलर भी होती है सर, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी सर। नहीं, कॉमन कौन सी होती है? कॉमन तो कुछ भी, लेकिन सबसे कॉमन कौन सी होती है? सर कॉमन सर आइका का। और आइका इज ब्रांच ऑफ व्हाट? सर आइका इज ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी। Sure? Are you sure about this? सर सॉरी सर ये वर्टिब्रल से सर पाइका निकलती है, आइका जो है वो बेसिलर से निकलती है सर।
आइका कहाँ से निकलती है? सर पाइका सर निकलती है सर वर्टिब्रल से, आइका आती है सर वहां से बेजिलर से सर। Whatever से आइका आती है. Okay. Can you tell me about the other branches of basilar artery? सर बेजिलर आर्टरी में सर पोंटाइन आर्टरीज होती हैं सर, उसके अलावा सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है सर, और उसके बाद डिवाइड हो जाती हैं सर पीसीए में सर। Okay. सर उसके अलावा तो सर ये बताइए इंटरनल ऑडिटरी कैनाल को भी सर आर्टरी देती हैं सर। तो what is the name of that particular vessel जो इंटरनल आर्टरी कैनाल में जाती है, उसका नाम क्या है? सर ऑडिटरी के नाम से सर कोई एग्जैक्टली याद नहीं है सर एग्जैक्टली। Okay. अच्छा, can you tell me briefly about the steps of MVD for trigeminal neuralgia? Yes sir, in park bench position we will position the patient and we will do the retrosigmoid approach, and we will give incision in the semilural line and 5 mm medial to the mastoid notch and 5 centimeter above and 5 centimeter below the mastoid notch, and we will first mark the transverse sinus and the sigmoid sinus, and we'll do craniotomy at the exterior junction of the transverse and sigmoid sinus. Later we will do a craniotomy, and we will open the dura in a Y-shaped manner, and after that we will drain the CSF from the cistern, and later we will do the retraction of the cerebellum inferior medially, so we can identify the nerves, and after getting adequate brain relaxation, draining the CSF, and then we will identify the 7th cranial nerve, and we will identify the 5th cranial nerve. And later, after confirming using the pre-op neuromonitoring, and we will place the Teflon if we find some vessel is compressing the 5th cranial nerve. ये बताइए कि यहाँ पे the most important vessel which can come in front of you, which is very very important, तो वो कौन सी vessel है जब when we are going for trigeminal neuralgia surgery? Sir, after craniotomy, after opening the dura, we will find the superior petrosal sinus जो होते हैं जो bleed करता है सर, उसको हमें bleeding रोकनी होती है सर। Superior petrosal sinus तो काफी दूर है, उसके साथ क्या करना हमने? कोई और vessel है? That is not vessel, वो तो sinus है ना? सर आर्टरी की बात कर रहे हैं तो सर उसके साथ सर इस inferiorly cerebellum को रिट्रैक्ट करते हुए तो सर हमें पाइका मिलती है सर। नहीं, वो तो काफी दूर है, उसको पाइका तो बहुत दूर है। ओके, अच्छा ये बताइए कि when we are going for trigeminal neuralgia surgery MVD, what complications can be there? Sir, we can injure the vessels, we can injure the 5th cranial nerve, we can injure 7th cranial nerve, and there can be post-op CSF leak, and we can injure the 9th, 10th cranial nerve, and we can injure the brain stem while doing the excessive retraction. ये टाइम हो गया कि नहीं? 5 मिनट। पोस्ट सर्जिकल सर किसी एक सेशन का मेनिंजाइटिस हो 5 सकता मिनट है। का टाइम होता है। जी मैं कुछ कहूं? जी बिल्कुल। यार इस बंदे का नाम क्या है? जी ये कैंडिडेट का नाम क्या है? ये फरहाद है, डॉक्टर फरहाद, ही इज फ्रॉम एलएनएच। फरहाद ने बहुत अच्छा बताया। मैं तो इसको पास करूंगा क्योंकि इसने एनाटॉमी बहुत अच्छी बताई। बिल्कुल, इसने आई एग्री विद यू, लेकिन इसमें उसने 2-3 दूसरी बात यह है कि उसने ये कहा कि आई कैन इंजर द फेशियल, आई कैन इंजर द वेस्टिबुलर कॉक्लियर। अरे सारी इंजर कर दोगे तो बचेगा क्या? दूसरी बात यह है कि टेफ्लॉन तुम कहते हो यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास टेफ्लॉन तो नहीं होता। हम लोग क्या यूज करते हैं? सर हम स्पंज स्टोन भी रख सकते हैं सर, हमें खाली वो करना होता है सर, डिस्टेंस क्रिएट करना होता है नर्व और वेसल में,
तो जेल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, जेल फॉर्म तो जो है गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी कोई और चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बोले फराज साहब। सर उसमें सर फैट ग्राफ्ट भी यूज कर सकते हैं, बट आई हैवंट सीन सर पर्सनली, मैंने तो खुद नहीं देखा सर। कोई मसल अच्छा। मसल का कुछ जिक्र है इस बुक में? सर फेशिया यूज कर सकते हैं, पेरिक्रेनियम फेशिया जी, यूज कर जी। सकते हैं सर। बिल्कुल सही, ऐसी चीज जो गल नहीं जाए, ठीक है ना। आप उसको पेरिक्रेनियम भी रख सकते हैं, आप मसल भी रख सकते हैं। लाल, मुझे फराज का बड़ा अच्छा लगा कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। हमारे हर कैंडिडेट को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो सीपीएमई की, एनआरपी या सारे प्रोसीजर्स की एनआरपी बता सके। उसने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। जबरदस्त, गुड। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक कैंडिडेट को इतनी आनी चाहिए एनाटॉमी। यस यस। अच्छा वो जो विसल है ना, जो इंटरनल ऑडिटरी मेटर्स, दैट इज लेब्रेंथाइन आर्टरी, ठीक है। जी सर, जी और सर। बाकी Thank you. मोस्ट कॉमन जो है ना वो है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी है या उसकी ब्रांचेस हैं। बाकी सब कर सकते, लेकिन दैट इज द मोस्ट कॉमन जो जिससे ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है ना। और जो विसल है वो सुपीरियर पेट्रोसल वेन है, जो वेन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नॉट फाइनल। तो वो ये दो तीन चीजें जो है, ठीक है। सो एनी हाउ आपने जो चीजें बताई इस पे आपका ये स्टेशन पास है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? जी डॉक्टर लाल, जी जी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें ताकि सारे स्टेशन हो जाएं। ठीक है। नहीं हो जाएंगे इंशाल्लाह, सारे हो जाएंगे। असल में हमने शुरू में लेट किया था ना। हु इज गोइंग टू डू दिस वन? ये कौन है? नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? डॉक्टर शाकिरुल्लाह है? सर डॉक्टर वहीद भी हैं सर। जी डॉक्टर वहीद साहब। अच्छा ये पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री वेरी हेड की ऑर्बिटल स्वेलिंग विद pulsatile proptosis. He had trauma 10 days back. So what other clinical features along with focused examination will you look for? Sir, Shakrullah will present, sir. जी जी कोई भी करे, ये सामने है, क्वेश्चन भी सामने है और ये आप ये जो एमआरआई जो एंजियोग्राम है वो भी सामने है। अच्छा इस पेशेंट में ये सॉरी इस पेशेंट में ये क्या लग रहा है? भाई कैंडिडेट कौन है, उनको हमारी आवाज आ रही है? अब्दुल वहीद साहब। जी सर। जी अब सर इसमें वी हैव ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट में आपने सारी चीजें बताई इसमें। तो ये बताएं कि ये हिस्ट्री आपने देख ली, आपके ख्याल में क्या है? व्हाट इज दिस पेशेंट हैविंग? Sir, this patient might have the carotid cavernous fistula, sir. So which type of carotid cavernous fistula you are suspecting in this case? Sir, I'm suspecting, sir, direct carotid cavernous fistula, sir, because the patient has, sir, cerebral proptosis, sir, and also he has a history of trauma. इस पेशेंट में और क्या चीज आप देखेंगे इसमें और क्या चीज देखेंगे आप? सर इस पेशेंट सर हम एक तो बुरी देखेंगे सर पेशेंट में, और सर उसके बाद सर हम इस पेशेंट की सर सेकंड नंबर सर चेक करेंगे। इसमें हम उसकी विजुअल एक्टिविटी चेक करेंगे सर, उसकी पीपल्स देखेंगे सर, आई मूवमेंट उसकी देखेंगे सर। उसके बाद सर हम इसमें जो है फंडोस्कोपी भी कर सकते हैं सर। उसके बाद सर हम इसमें जो है फेशियल एग्जामिनेशन में सर इसका हम जो है सो कंजक्टिवा देखेंगे सर, कीमोसिस वगैरह देखेंगे, और सर एनी फेशियल स्वेलिंग सर वो भी देखेंगे सर, और सर
फर्स्ट नर्व भी सर हम इसमें देखेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व भी देखेंगे इसमें सर, ऑल्फेशन वगैरह देखेंगे सर। What other examination you will do which can help you for the diagnosis, which can confirm your diagnosis? सर इन्वेस्टिगेशन सर। नहीं, एग्जामिनेशन की बात हो रही है। एग्जामिनेशन में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना है? सर इसके एग्जामिनेशन में सर इसके एग्जामिनेशन में सर एक तो हम सर इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद सर हम इसमें जो है वो प्रोटोसिस की सर मेजरमेंट करेंगे उसमें। ये बताइए ये जो एंजियोग्राम है ये कौन सा व्यू है? सर ये लेटरल व्यू है सर एंजियोग्राम का सर। ये राइट है कि लेफ्ट है? सर दिस इज लेफ्ट सर। So how can you say it is left? Okay, ये क्या है? ये Because what is this one? ये कौन सा? ये क्या है? ये कर्सर आपको नजर आ रहा है ना? यस सर सर इसमें सर ये ऑप्थेल्मिक किसमें ये ऊपर जा रही है सर? ये जो ए है ये क्या है? कौन सा वेसल है? अस्सलाम वालेकुम। सर ये ऑप्थेल्मिक सर। अच्छा, ये बी क्या है? ये व्हाट इज दिस वन? सर ये एंटीरियर कोराइडल सर हो सकती है। Interior choroidal. So interior choroidal is a branch of what? Sorry, anterior choroidal is the branch of sir vitreous portion of the ICA sir. आपकी आवाज मुझे सही नहीं। पोर्शन क्या पोर्शन बता रहे थे आप? सर vitreous portion की ब्रांच होती है सर ये anterior choroidal सर। अच्छा, ये बताइए ये सी क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये? सर ये इसका पेट्रोस पोर्शन है सर आईसीए का सर। और ये डी क्या है? जी सर ये सर्वाइकल पोर्शन सर नजर आ रहा है सर। ओके, अच्छा एक क्लासिफिकेशन है जिसको बैरो क्लासिफिकेशन कहते हैं ना, ये कैराटिड कैवर्नस फिस्टुला का, ये इट इज वेरी कॉमन और हर बुक में लिखा हुआ है। So can you tell me about that? Sir, I have heard about this, but I don't remember, sir. Actually, you don't right remember. now. Okay. So when a patient is having cardiac cavernous fistula, जो high flow fistula है, so what are the different surgical options? What are the different treatment options? Sir, इसमें सर हम endovascular सर ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें। Okay, endovascular कौन सी ट्रीटमेंट होती है इसकी? सर एंडोवास्कुलर सर हम इसमें कॉइलिंग कर सकते हैं सर। कॉइलिंग करते हैं और सर इसको एम्बुलाइज भी सर कर सकते हैं। नहीं तो एम्बुलाइज करते हैं तो किस तरह करेंगे ना, और ये कॉइलिंग जो भी करना है वो कैसे करते हैं, किधर करते हैं कॉइलिंग, वो चीज कहाँ पे मटेरियल कहाँ डालते हैं? सर जो इसकी फिस्टुलाइक कम्युनिकेशन है सर, जहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है जिस वेसल से। So where is communication? ओके, आपका वो टाइम खत्म हो रहा है डॉक्टर लाल। तो इसमें रियाज साहब, डॉक्टर लाल 5 मिनट खत्म होता है जी। रियाज साहब से हम जरा ओपिनियन लेते हैं, फिर मैं भी अपना बता रहा हूं। पहले तो ये है कि ये जो साहब हैं ये हमारे रेजिडेंट ये फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। यस सर। तो फिर आपको मतलब थ्योरी तो बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो आपको ये क्लासिफिकेशन वगैरह सब चीजें याद होनी चाहिए। यस सर। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा एंजियोग्राफी आपकी थोड़ी सी कमजोर है, तो आप अपनी एंजियोग्राफी को इम्प्रूव करें, क्योंकि जो चीजें आपने बताई हैं, जैसे आपने बी को जो है ना आपने कहा कि वो कोई एंटीरियर सेरिब्रल है, पता नहीं कोराइडल है। जी सर। ठीक है ना, आप देखें कि आपकी जो जी, लेकिन ये आर्टरी नहीं है। क्यों आर्टरी नहीं है कि आप देखें कि जो आर्टरीज हैं वो बहुत ब्लैक हैं और जो वेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो जो है ब्लैक तो हैं लेकिन लेस ब्लैकर देन arteries. So you have to identify the arterial and the venous. So this is a venous
वेसल। ओके जी सर, यस सर। ठीक है ना, और आपको थोड़ा गौर से देखें तो वो आई की तरफ जा रही है। जी तो सर। आप एक तो अपनी एकेडमिक्स को इम्प्रूव करें, सेकंड ये है कि अपना एंजियोग्राफी जो है वो भी इम्प्रूव करें। जी अदरवाइज सर। ठीक है, अगेन अ गुड इनिशिएटिव, वी अप्रिशिएट यू पीपल, यू विल ज्वाइन अस all the mean in these sessions so that you can improve your knowledge and skills to how to pass the exam. इंशाल्लाह सर। Good. जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, Thank you लाल, इसमें thank you लाल। मेरे आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। मेरे मेरे इसमें एक दो ऑब्जर्वेशन है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि उसको पता चले। भाई इसमें जी आपने अस्कल्टेशन नहीं की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है डायग्नोज में, आपने अस्कल्टेशन की नहीं। अगर आपने प्रोपोसिव अस्कल्टेशन नहीं की तो इसका मतलब यू हैव नो कंसेप्ट अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ सच पेशेंट्स। वन, दूसरा ये क्लासिफिकेशन जो है, जब भी कैराटिक अवेयरनेस स्पेशल का स्टेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, जो कि आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन आपने सही नहीं बताई तो उसका मतलब है कि यार उस में देयर आर चांसेस का फेल कर ले। तीसरा, आपने एनाटॉमी तो बिल्कुल यानी कॉमन चीजें हैं और आप ऐसी इधर उधर की चीजें बता रहे हैं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस का पता नहीं। तो ये वाला जो स्टेशन है ये आपका फेल है, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है जी सर। अब नेक्स्ट कौन है, हु इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट कौन कर रहा था कि बार बार उसका नाम हम नाम करें? अस्सलाम वालेकुम सर। शाकिरुल्लाह साहब करना, अस्सलाम आप वालेकुम करना सर। चाहे शाकिर साहब? वालेकुम सलाम। जी सर। ठीक है, ओके। ये एक एंडोस्कोपिक व्यू है, तो मैं आपको नहीं बता रहा कहाँ का व्यू है, आपने खुद बताना है। और जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर सामने हैं जो हाईलाइटेड हैं, जिनको ये लगे हैं जो पॉइंटेड आउट है, आपने इनके नाम बताने होंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि क्या है। ये शाकिरुल्लाह साहब। शाकिर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर शाकिर आउट हो गए आई थिंक। कोई और बंदा वहां पे अगर कोई बैठा है एग्जाम वाला जिसने पेपर दिया हो, वो जरा बताएं कौन है। और लाल, मैं समझता हूँ मैं जरूरी नहीं बताऊं है कि सर? फाइनल स्टूडेंट, ये चीजें तो फोर्थ ईयर को भी आना चाहिए। बिल्कुल यस, जो भी अवेलेबल हो, जो वॉलंटियरली करना चाहता हूँ। कोई और ये हमारे साथ है डॉक्टर सलीम शाह है, सर मैं गिवन पेपर, और अभी वेट करें, अल्लाह करें उनका पेपर पास हो जाए। तो डॉक्टर सलीम शाह, ही इज गोइंग टू टेल अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। This is A1 is the optic chiasma. नहीं, मैं बताऊं ये क्या है, व्हाट इज दिस व्यू? This is basically endoscopic view of the base of the patella, showing the anatomy of the pituitary and optic chiasma, and with bilaterally carotid arteries. ये क्या है ये, व्हाट इज दिस वन? So this is the optic chiasma. एंड दिस वन इज, This is optic nerve. और ये क्या है ये? The pituitary is the adenoma pituitary gland. एंड व्हाट इज दिस वन? The basilar artery. ये बेसिलर आर्टरी है। और ये क्या है ये? So this is the superior cerebral artery, and above all this is the PCA. What about this one? Third cranial nerve for oculomotor. और ये क्या है ये? The internal carotid artery. How can you say it is internal carotid artery? Because this is the forming a siphon area of the internal carotid artery. Yes, sir. और ये क्या है, ये कौन सी वेसल है ये? Sir, this is the anterior cerebral artery, which is forming the anterior communicating artery. लेकिन ये आपने कौन सी नर्व बताई? I think ये वाली, ये sixth cranial nerve abducent.
ये वाली क्या ये? This is the Dura fold. नहीं ये क्या है ये? और ये क्या है ये? So this is the bones. और ये क्या है ये? Ophthalmic division of the trigeminal. यहाँ पे कैसे पता चलिए ophthalmic division of trigeminal है? जी. So can you tell me how a transfemoral surgery is done? First of all, we will shift the patient into the operation theater. Then make the position. We will patient make the supine position and do the make the spine position. And after spine position, we will wash the nozzle cavity. Apply the 3-pin head holder and then slightly flex the head and then do the aseptic measure by applying the iodine and spirit. Then after that we will pack the nozzle cavity. You are in the nasal cavity. अब वहाँ पे क्या important structure है जो कि आपको help करता है? In the nasal cavity, first of all, we will look nasal cavity. We will look the inferior turbinate nasal conchae, then the middle nasal conchae, and the sphenoid os. And at the level of that area, we will give the perpendicular incision at the mucosa and strip the mucosa downward with removing the bone by caring to do not perforate the opposite mucosa. Then through this we will reach at the roof of the sella by visualizing the rostrum, and after that we will do the diamond burr by rostrum. What do you mean by rostrum? Rostrum is the attachment point of the woman which is attached to the base of the sphenoid sinus. So that we will apply the drill by opening the sphenoid sinus and strip off the mucosa. And at that area, we will use the, if you are localizing our site, we will use the CR and localize the flora. Okay, you are in the you are in the sphenoid sinus. Yes. फिर क्या है? Then we will look at the floor roof of the sella by visualizing the anteriorly is the planum sphenoidum and bilaterally both carotid cavernous carotid recess and inferiorly is the clivus. So at the roof we will open the roof then. Yes. आपका टाइम खत्म हो गया. जी डॉक्टर यासर. इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें बाकी वो चीज तो ठीक है, लेकिन इसमें एनाटॉमी में थोड़ा सा मसला हो रहा था. यानी ये यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस नर्व्स. बाकी चीज तो आपने मालूम की, यानी दिस इज ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक नर्व, ये कैरोटिड्स हैं, ये बेसिलर हैं, ये जो है ना दिस इज थर्ड नर्व, ये वाला दिस चीज लंबा सा है, इतना लंबा, दिस इज द सिक्स्थ नर्व. ठीक है. तो और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेक्स है, तो ये वाला क्या होगा, ये ट्राइजेमिनल नर्व ये वाला आ रहा है ना इधर. ठीक है. बाकी पिट्यूटरी है, बेसिलर है, इस तरह ये उसकी ब्रांचेस हैं जो बना रहे बेसिलर, और ये सुपीरियर सेरेबेलर नजर आ रहा है. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि व्हेन वी आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन दिस पेशेंट्स, तो ये काफी छोटी सी जगह होती है जिसके साइड पे कैरोटिड्स हैं, इंटीरियरली ऑप्टिक कियाज्मा और ऑप्टिक नर्व का पोर्शन है. तो इसमें कंपैरेटिवली सेफ जगह हमारे लिए होती है एज कंपेयर टू द इंटीरियर एंड लेटरल साइड. एनी हाउ आपकी एनाटॉमी बाकी चीज ठीक थी, बस ये नर्व्स में थोड़ी सी गलती थी, ये ठीक कर ली. तो इस केस में आपको तो मैं पास करूंगा. बाकी रियाज साहब की ऑब्जर्वेशन देखें क्या बोल के. मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में जब हमने शुरू किया था तो हमने बहुत बेसिक एनाटॉमी से शुरू किया था, और मैं आज देख रहा हूं कि हमारे कैंडिडेट्स बहुत ऑपरेटिव एनाटॉमी हमें बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. उनको और अच्छा इंप्रूव होना चाहिए. लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जल्दी जल्दी कि हम पीछे जाएंगे, म्यूकोसा को इंसिजन लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है. और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन डेफिनेटली इनको इंप्रूव होना चाहिए. जहां तक कोना की बात है कि डेफिनेटली ये मिडिल टर्मिनेट पे गए, फिर मिडिल टर्मिनेट के बाद इनको जो है ना
स्फेनोइड ब्रेसेस जो है वो देखनी है। उसके बाद जो है इनको जाके ड्रिलिंग करनी है। डेफिनेट हम इनसे खाएं, लेकिन ये है कि इनकी नॉलेज और ऑपरेटिव अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। वेरी गुड, गुड। थैंक यू सर। में ये दूसरा हम लास्ट वन करेंगे सर। लास्ट वन कर देते हैं, इसको छोड़ दें। अच्छा। ये एनाटॉमी वाले को ये पहले भी किया है, लास्ट वन कर लें। और डॉक्टर सुहेल ने लम्ब से, उनसे ले वाइवा। अच्छा जी, ठीक है। डॉक्टर सुहेल अगानी फ्रॉम लम्ब्स। ये तो वही चीजें हैं, ये वाले करेंगे। ओके जी डॉक्टर सुहेल साहब, व्हाट कैन यू से, ये जो आपको चीज नजर आ रही है आपके हेड में, कैन यू टेल मी अबाउट द रीजन ऑफ द ब्रेन कि कौन सी जगह है जहाँ पे ये स्ट्रक्चर पड़े होते हैं? ये डॉक्टर सुहेल साहब। डॉक्टर सुहेल नहीं है, एक काम करें फिर डॉक्टर मेजबीन से पूछ लें। डॉक्टर मेजबीन शायद ऑनलाइन है। डॉक्टर सुहेल भी हैं सर हमारे। सुहेल आ गए, सुहेल आगानी आ गए। जी भाई, कौन करना चाहता है? हेलो हेलो। जी जी। डॉक्टर सुहेल आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे जरा कौन सी जगह है ब्रेन का? ये एम ए सेला रीजन। ओके, सो ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व्स है, तो ये क्या चीज है ये आई थिंक दिस इज इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड, ओके गुड। अगर ये इंटरनल कैरोटिड है, ये तो ये क्या है ये? आई थिंक दिस इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके, अगर ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है तो कैन यू टेल मी ये क्या चीज है ये? दिस इज लेडिकोस्टेड आर्टरीज। ठीक है, और ये क्या है ये? देखा है दिस कुड बी इन्फंटिबुलम। दिस कुड बी, आपने क्या बताया? इन्फंटिबुलम। ओके, कैन यू टेल मी अबाउट द इन्फंटिबुलम? ये क्या चीज है और उससे क्या क्या अटैचमेंट, कहाँ तक अटैचमेंट होती है इसकी? इट्स अ स्टॉक एरिया। स्टॉक है, लेकिन कहाँ से अटैच होता है? जी ओके, ये क्या है, ये जो ब्लू सा नजर आ रहा है और ये वाली ये जो है, ये जो कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस, और ये क्या है ये? दिस इज लुक्स टू बी पिट्यूटरी। तो क्या पिट्यूटरी कैवर्नस साइनस के अंदर होता है? जी, अगर आप कह रहे कि ये कैवर्नस साइनस है और ये पिट्यूटरी है, तो क्या पिट्यूटरी ग्लैंड कैवर्नस साइनस के अंदर पड़ा होता है? लेटरली सर, लेटरल। बट दिस इज नॉट लेटरल। अब देखिए तो बिल्कुल साथ ही है ना। ओके, अच्छा ये बताएं कि इस तरह जो व्यू है ये आपको कब नजर आता है जब आप ऑपरेट करते हैं, कौन से अप्रोच में? ये तो एक्सियल सेला रीजन। नहीं, ये जो आपको व्यू नजर आ रही है, ये व्यू असल में बेसिकली ये बैक से नहीं, उन्होंने सामने से दिखाया, लेकिन ये कौन सा अप्रोच होता है जो through which we are going to the pituitary region, in which we can have this type of view. Superior, sir, superior. From the superior view. Superior view. अप्रोच का नाम क्या होता है, कौन से अप्रोच से ये व्यू हमें मिल सकता है?
मोस्टली इंटर हेमिस्फेरिक अप्रोच आती है सर वहां से। नहीं तो इंटर हेमिस्फेरिक तो पिट्यूटरी के लिए तो नहीं करना चाहिए ना, कोई और देन गो फॉर दो सबफ्रंटल सबफ्रंटल अप्रोच अप्रोच जाएगी सर। जी जी। सो कैन यू टेल मी अबाउट द सबफ्रंटल अप्रोच, कैसे करते हैं? So, sir, we will get the incision at the coronal, unicoronal incision. Then we will do the plate the bone, sir. Then open the dura. Then we will gently detect the frontal lobe. Then identify the scalar region. Then we ये सबफ्रंटल अप्रोच हम कर रहे हैं, आप मुझे पोजीशन के बारे में बताएं, फिर सेकंड जो है स्केल में इंसिजन कैसे देंगे। एक मिनट मुझे सुन लेना, थोड़ा सुन ले प्लीज। पहले पोजीशन बताएं, फिर आप स्केल्प में इंसिजन कैसे देंगे, फिर बोन बरहोल कहाँ बनाएंगे, फिर ड्यूरा कैसे खोलेंगे, फिर उसके आगे कैसे इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएं जो कि आपके लिए, पेशेंट के लिए और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। Patient will be in the supine position, sir. The head will be slightly tilted to the right side, sir. We will go for the right side approach. Incision will be given at the coronal, unicoronal incision. सबफ्रंटल अप्रोच हम कर रहे हैं, सबफ्रंटल, तो उसमें पेशेंट की हेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, नेक और हेड की क्या पोजीशन होनी चाहिए? Slightly flexed, extended position. एक्सटेंडेड कितना एक्सटेंशन चाहिए हमें? Sir, at least 10 degree centigrade, sir, mostly. ओके, फिर क्या करेंगे आगे? फिर स्केल्प का इंसिजन कैसे दोगे? ये सोहेल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सोहेल साहब आई थिंक आउट हो गए, यहाँ पर नहीं है अभी सोहेल साहब। तो उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो कहे कि क्या जो ना जो बता रहा था उसको। और कोई है सोहेल साहब के साथ जो बैठे हुए हो? जो उसको चीजें बता रहा था ना। इनके साथ कोई और है सोहेल साहब के साथ? हेलो। ओके शाकिरुल्लाह साहब आप बताएं बाकी। डॉक्टर शाकिर साहब आप हैं? ये बताओ डॉक्टर शाकिर आप माइक अनम्यूट करें। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसने तो एनाटॉमी सही बताई, उसने सारी चीज तकरीबन ठीक बताई उसने, और अप्रोच भी जरा हो रहा था, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ठीक करेगा अगर सामने आ जाए, वरना शाकिरुल्लाह से कोई भी सामने है वो बताए जरा। अच्छा जी सोहेल साहब आ गए हमारे पास। जी जी सोहेल साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी सोहेल साहब बोले। कोई और बताएं, शाकिरुल्लाह साहब हैं या डॉक्टर फरहाद आप बताओ। फरहाद। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप हमें सब फ्रंटल अप्रोच की जो इंपॉर्टेंट चीजें स्टेप्स में बता दीजिए। ये आपकी आवाज आ रही है? जी सर। पेशेंट सुपाइन होगा और इसको हम स्लाइड फ्लेक्स करेंगे, बिकॉज हमें फ्रंटल लोब की जो है ना वो चाहिए, रिट्रैक्शन चाहिए, वो ग्रेविटी से फॉल करे। दूसरा सर तो राइट साइड फ्लेक्स करना होगा या एक्सटेंशन करना होगा? सर एक्सटेंड करना होगा, सॉरी सर, एक्सटेंड करेंगे सर। ओके जी सर उसके बाद सर राइट साइडेड क्रेनियोटमी करेंगे, लेकिन इसका सर जो फ्लैप है ना, हम सर इसको जो है थोड़ा सा बीक से लेफ्ट साइड की तरफ भी जाएंगे, ताकि हमें क्रेनियोटमी अगर बढ़ानी हो तो हम उसके लिए अपना इंसिशन बढ़ा के रखें। सेकंड सर इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये होगी कि इसमें हमें सब फ्रंटल जाएंगे तो इसमें हमें हमारा जो है फ्रंटल साइनस ओपन हो जाएगा सर, तो उसका हमें ख्याल करना है। दूसरा सर जब ड्यूरा ओपन करेंगे तो ड्यूरा के बाद हमें इसको सीएसएफ ड्रेन करना है, फ्रंटल लोब की रिट्रैक्शन का ख्याल रखते हुए। और तीसरी चीज सर इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो सैजिटल साइनस की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसका भी हमें ख्याल करना है कि उसको इंजर ना करें। तीसरा सर ये कि हम जैसे ही फ्रंटल लोब को रिट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑप्टिक्स दिखेंगी,
तो ऑप्टिक्स को देखते हुए उसके साथ हमें कैरोटिड को फॉलो करना है। कैरोटिड की ब्रांचेस जिस तरह डिवीजन होती है A1, फिर उसके बाद रिकरेंट ऑफ आर्टरी ऑफ हिबिटर को आप जो है ना उसके लिए देखना कर है, रहे हैं, A2 को देखना है, इन सब we are स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। we are going to operate this patient for pituitary tumor. तो उसमें आप जो है ना बाकी वेसल तरफ क्यों जा रहे हैं? आपने पिट्यूटरी ट्यूमर ऑपरेट कर रहे हैं सर सब फ्रंटली करेंगे तो सर हमें वेसल्स दिखेंगे ना सर आगे से सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे कि मैं फला तो वेसल के पीछे आप क्यों पड़े हैं? आप नहीं देख ले तो ज्यादा अच्छा है। आपने लोब्स रिट्रैक्ट किए, आप आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? सर लोब रिट्रैक्ट करके सर हम पहले हम ट्यूमर का कैप्सूल आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ अगर कोई एडेरेंस नहीं है तो हम उसको लो बाइपोलर पे ट्यूमर को ओपन करेंगे कैप्सूल को और उसकी इंटरनल डीबल्किंग करेंगे सर। इंटरनल डीबल्किंग करेंगे और उसके बाद अगर देखेंगे कि कोई उसकी कोई एडेरेंस है किसी नर्व के साथ, ऑप्टिक के साथ, ऑल्फैक्टरी के साथ, तो उसको यहाँ वेसल्स के साथ एडेरेंस है तो उसको हम छोड़ देंगे एज सच, उसको हम कंप्लीट रिमूव नहीं करेंगे सर। तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जिसको आपने देखने हैं? सर फर्स्ट तो हमारी सर ये वेसल्स हैं सर, इंटरनल कैरोटिड और ACA इसकी ब्रांचेस, उसके बाद ऑप्टिक है, ऑल्फैक्टरी है और पोस्टीरियरली अगर हम ट्यूमर पूरा निकाल लेते हैं तो पोस्टीरियरली हमें क्या कहते हैं सर कॉर्पस कैलोसम का भी देखना है, फॉनिक्स की इंजरी को प्रिवेंट करना है। Okay, उसके साथ पेशेंट है, इस पेशेंट को आपने ऑपरेट किया तो पोस्ट ऑपरेटिवली आपको इन पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए ऑपरेट कर दिया, पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए। पोस्ट ऑपरेटिवली आप क्या चीज देखेंगे उस मरीज में? सर पोस्ट ऑपरेटिवली इसको सर हम फॉलो करेंगे, इसके यूरिन आउटपुट्स को फॉलो करेंगे, इसके टेम्परेचर को फॉलो करेंगे, इसका GCS मॉनिटर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पिट्यूटरी को डैमेज किया और यूरिन आउटपुट ज्यादा आ रहे हों, और इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉलो करेंगे कि कहीं हाइपो या हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं हो रहा है इसका, और इन चीजों को सर देखेंगे सर। और कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको पहले देखना होता है? आप इस पेशेंट को विजन देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव की? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल पोस्ट ऑफ विजन भी करेंगे। एनी सीसीएफ लीक देखेंगे आप? सीसीएफ लीक सर उसके साथ मोटर पावर भी असेस करेंगे, कहीं इसको हेमी तो नहीं हो रही, कोई हमने वेसल्स तो नहीं ली, एंटीरियर सेरेब्रल तो नहीं ली, उसको भी देखेंगे। सफंडर जा रहे हैं तो आप क्यों हेमी कर रहे हो? ओके डॉक्टर रियाज साहब, वो टाइम खत्म हो गया इसका, तो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? फिर मैं भी अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा क्या है। रियाज साहब नजर नहीं आ रहे? अच्छा, इसमें नहीं मैं आ गया। जी सर, आपकी ऑब्जर्वेशन है? जी हाँ, बात यह कि इनकी जो अप्रोच है रिगार्डिंग दीज डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द पिट्यूटरी इज नॉट गुड। अब मतलब सुहेल जो है उसकी जो है थोड़ा सा बहुत मुझे रिजर्वेशन है उसकी अप्रोच की, और ये जो है शाकिरुल्लाह साहब या ये कोई दूसरे हैं? ये फरहाद साहब जी। So I think to some extent they are very good because we are contrary to the examination pattern and exam, we are asking more and more in detail out of the exam sessions. So I think for the examination point of view, they are quite good enough, though they will improve themselves for surgery after the exam. But to some extent, I think they are better. Yes. If you have the suggestions, you can tell. बिल्कुल, मेरी भी वही ऑब्जर्वेशंस के बारे में है, ठीक थी इसकी। यानी आज जो चीजें डॉक्टर रियाज साहब ने अरेंज की थी, जो डायग्राम्स थे और जो शॉर्ट केस था, मैं बताऊं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोग्राम था, इसी तरह चीजें एग्जाम में होती हैं। ये जो पिट्यूटरी के ट्रांसफेनाइडल और ये सफरेंटल अप्रोच के जो व्यू पड़े हैं, दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यूज और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों ने आज देख ली इंशाल्लाह, और आप कोशिश करिए इन चीजों को दोबारा जाके पढ़ लें। यानी मैं बताऊं जितने 2-3-4 सेशन हमने किए, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में इस किस्म की चीज जरूर आएंगी जो कि आपको काफी हेल्प करेगी आज की जो डिस्कशन है। तो सब लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट जो भी सेशन हो उसमें अगर आप लोग रेगुलर हो जाए। सो एनी हाउ इट वाज अ गुड डिस्कशन, और ये जो कुछ सेशन बाकी काफी अच्छी किए इन लोगों ने। तो
डॉक्टर सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर लाल रहमान साहब का, इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी जेपीएमसी के वो बहुत ही अच्छे एकेडमिशियन हैं। वो इन चीजों के अलावा भी बहुत ज्यादा मतलब इस चीज में इज अ वेरी गुड टीचर एंड आल्सो अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। तो मैं उनका थैंक्स करूंगा कि उन्होंने ये टाइम निकाला कि इस सेशन के लिए। दूसरा मैं थैंक्स करूंगा डॉक्टर पीर असद अजीज, ये जितना भी मटेरियल बनाया है वो डॉक्टर पीर असद अजीज ने। जब उसने मुझे चेक करवाया तो कतई मुझे ये फील नहीं हुआ कि ये बिलो स्टैंडर्ड है, बल्कि मुझे ये लगा कि दिस इज अप टू मार्क, नॉट द मोर हाई स्टैंडर्ड बट दिस इज अप टू मार्क फॉर अ फाइनल ईयर कैंडिडेट। इतना फाइनल ईयर कैंडिडेट को आना चाहिए। और नेक्स्ट चीज मैं ये अनाउंस करूंगा कि हम लोग जो है हर ट्यूसडे को ये सेशन करेंगे, तो डू ज्वाइन अस एवरी ट्यूसडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद हम लोग हो सकता है कि ट्यूसडे के अलावा सैटरडे को भी करें, और फिर हम लोग जो है इसको लॉन्ग केस पे भी लेके जाएंगे। लेकिन लॉन्ग केस थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें जो है मैं रेजिडेंट से कहूंगा कि वो पढ़ें, और जो अपीयर होना चाह रहे हैं एग्जाम में और जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आ गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी क्लिनिकल ज्यादा अच्छी करें, अपनी जो उनकी वो जो है थ्योरेटिकल नॉलेज उसको ज्यादा इम्प्रूव करें। लाल जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जिस तरह रियाज साहब ने बता दिया ना कि आप लोग जो खासकर जो एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो वो अपना थ्योरी और जो बाकी प्रैक्टिस है सारी चीजें बेहतर कर लें। अभी भी एग्जाम में टाइम है 14, तो 2-3 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते तो कम से कम है, इसमें काफी कुछ कर सकते हैं आप लोग। और रियली इट वाज अ वेरी गुड सेशन सर, थैंक यू, आपने काफी अच्छा अरेंज किया था। यानी बिल्कुल एग्जाम के मुताबिक सारे जो सेशंस थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। और रेजिडेंट को समझना चाहिए कि अब जो है ना वो C1 टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे, अब C3 टाइप क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप सब जो है ना न्यूरोसर्जन बनना चाह रहे हैं। यू पीपल आर नॉट द अंडर ग्रेजुएट्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।